Hello students, this is Namrata from Semstar Global School and today we will discuss chapter 3rd, sports and games again because your book has been explained है ना, जो चीज़ें आपकी बुक में हैं that we have discussed already. Now here something extra I would like to discuss. As you can see on my screen, that is one activity. In this activity some games name are given in rectangular box and you have to match them with the circle one to complete a game name. Okay, so let's get started. Match the circles with the rectangles to get the name of a game in each case. Okay, so for number one is foot, so you can match it with ball. So it is football. See, here we have done with one game. Basket, again you can go with ball, so that is basketball. Table, tennis. Snakes and ladders, and hide and seek. So as here you can see this is the type of the activity by which we can complete the game name. Okay, so do you play any of these? आप कोई गेम खेलते हो इनमें से, है ना? In your class, in which game is played by the majority of students? So as just because of pandemic, we are in our homes, nobody is meeting with another student. So अभी आप अपने घर में ये डिस्कस कर सकते हो कि इसमें से मेजॉरिटी क्या है, कौन सा गेम आपके घर में लोग सबसे ज़्यादा खेलते हैं. अब हम गेम क्यों खेलते हैं, हम गेम प्ले क्यों करते हैं? वाई डू वी प्ले स्पोर्ट्स और गेम्स? टू एंटरटेन अस, है ना, और टू मेक अस फिट एंड हेल्दी एंड टू मेक आवर करियर. So everyone loves to get entertained. Entertainment gives us a break from everyday tensions and work. Definitely, it also relaxes our mind. And there are various ways in which people entertain themselves. Some listen to music, watch movies, dance, tell stories, and so on. So playing games also entertain us. Now let's have a look upon games. So see all the things we have discussed. I am just going to explain you some important things that is not in your book, है ना? Like why do we play game? Okay, local games, जो हम अपने आसपास के एरिया से देख के उससे इन्फ्लुएंस होकर हम खेलते हैं या जो हमारे आसपास के लोग ज़्यादा खेलते हैं, दे आर कॉल्ड लोकल गेम्स. सो दीज गेम्स आर also very popular. They give a lot of enjoyment and do not cost much. इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है. Children love flying kites, playing with marbles. Other games like खो-खो and कबड्डी are also very popular. ठीक है, तो ये सारे गेम्स क्या है? लोकल गेम्स हैं. ठीक है, और in some places the youth, that means students like those who are studying in class 10 to graduation, they are the youth, है ना. So they practice wrestling, boxing and shooting. Many players work hard and develop their skills. स्किल मतलब आपको जो काम आ रहा है उसको आप और इन्हांस कर रहे हो, दैट इज़ योर स्किल इम्प्रूवमेंट, है ना. देन दे प्ले फॉर देयर कंट्री इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ब्रिंग ऑनर. यस, जैसे मैरी कॉम है ना, बॉक्सर है ना, और सानिया मिर्ज़ा, शी इज़ अ टेनिस प्लेयर. तो शी हैज़ इम्प्रूव्ड हर स्किल्स एंड नाउ शी इज़ रिप्रेजेंटिंग herself as a representative from India in टेनिस गेम. ठीक है, सो अच्छा, मार्शल आर्ट्स के बारे में वी हैव ओनली नेम्स एंड द डेफिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट. So let's have some more information about martial arts. ठीक है, so martial arts has been practiced in India since the ancient times. बहुत पुराने टाइम से we are playing martial arts. ठीक है, it has been a part of popular local games. Yes, absolutely. Indian epics tell us about the martial skills of a princess and warriors. ठीक है,
जो प्रिंस होते थे और जो वॉरियर्स होते थे उनके बीच में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस आपने बहुत सारी कहानियों में सुनी होंगी, जैसे अर्जुन, करण, भीम एंड अदर प्रिंसेस वर ट्रेन्ड बाय देयर गुरु द्रोणाचार्य इन वेरियस मार्शल आर्ट स्किल्स, है ना। गुरु द्रोणाचार्य से इन सभी ने अलग अलग मार्शल आर्ट्स में स्किल सीखी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में ये बहुत पहले से पॉपुलर है। द वेरियस मार्शल आर्ट्स आर दैट आर स्टिल पॉपुलर इन दिस मॉडर्न एरा। एरा मीन्स एज, जो अभी हम लोगों का टाइम है, दैट इज कॉल्ड एन एरा। सो पॉपुलर इन दिस मॉडर्न एरा आर रेसलिंग कॉल्ड पहलवानी और मल्लयुद्ध, है ना, मल्लयुद्ध। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म है हमारे इंडिया का, वो हम कह सकते हैं कि पहलवानी है, या जिसे हम रेसलिंग कहते हैं या मल्लयुद्ध भी कहते हैं, अंडरस्टूड। और वज्र मस्ती, कलरियापट्टू, थैंगता एंड सिलम्बम, ये सारी चीज़ें हमने आपकी बुक में भी दी हुई हैं, ठीक है। सो वज्र मस्ती इज़ वेरी मच लाइक कुंग फू, ठीक है, बॉक्सिंग एंड कराटे। कराटे आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में भी जब एनुअल फंक्शन हुआ था तो स्टूडेंट शोड सम मूव्स ऑफ कराटे, है ना। सो थांगता इज़ अ पॉपुलर मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम मणिपुर। एक्स, स्पीयर एंड स्वॉर्ड मीन्स तलवार, ठीक है। सो ये इस मार्शल आर्ट में यूज़ होते हैं, इस स्टाइल में यूज़ होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्शल आर्ट्स रिक्वेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर अ मार्शल आर्ट स्टूडेंट, ठीक है। पीपल हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम एक्सपर्ट, बिल्कुल, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो बहुत प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। द एरियाज वेयर मार्शल आर्ट्स इज टॉट आर नोन एज अखाड़ाज, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अखाड़ा वो होता है जिसमें हम पहलवानी या कुश्ती सीखते हैं, बट हियर दे आर सेइंग कि जिस जगह पे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अखाड़ा कहते हैं, ठीक है। गुरुज टीच देयर डिसिपल्स मीन्स जो सीख रहा है, ठीक है। इन द अखाड़ाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड देयर, दैट मीन्स आपको पंक्चुअल होना है, रेगुलर होना है और प्रैक्टिस डेली करनी है, नो एक्सक्यूजेस कैन बी अप्लाई देयर, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू वांट एन एक्सपर्ट इन एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, है ना। सो द डिसिपल्स हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर गुरुज। अब स्कूल जैसे नहीं होता कि आपने जिस टीचर को मर्जी किया रिस्पेक्ट किया, जिसको नहीं किया, नो, they are respecting their gurus a lot, है ना। various tools that are used to practice martial arts are गदास, मैसेज, हनुमान जी लेके रहते ना वो, मदगल्स, क्लब्स, नल्स, स्टोन वेट्स, ठीक है, एंड गरनाल्स, स्टोन व्हील्स, सब आपके टूल्स हैं जो मार्शल आर्ट में यूज़ होते हैं। जोरीज, हैवी क्लब्स एंड समतोला, बाबल्स, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं मलखम की। मलखम भी पढ़ा था ना, तो मलखम की अगर बात की जाए तो एक बांस का बड़ा सा पोल होता है, बम्बू पोल होता है, ठीक है, और इट इज़ एन आर्ट इन विच द प्लेयर परफॉर्म्स फीट्स विद द हेल्प ऑफ अ वुडन पोल और रोप। कुछ लोग रस्सी लटका के उसके ऊपर भी अपने स्टंट्स दिखाते हैं और कुछ पोल के ऊपर करते हैं। एक समय पे अगर आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखा हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इसको शो किया जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मलखम के लिए या रोप मलखम के लिए आते थे। So the practice of martial arts helps the players to develop flexibility, strength and stamina, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट सीख रहा है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी और उसका स्टेमिना भी। सो दीज ऑल अबाउट योर मार्शल आर्ट। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीम स्पिरिट एंड कैप्टनशिप। आपकी बुक में था स्पोर्ट्समैनशिप,
एंड प्ले फेयर, है ना। अब यहाँ पे नाम दे दिया है टीम स्पिरिट एंड कैप्टनशिप. सपोज यू आर अ कैप्टन ऑफ अ टीम, so how you have to behave with your team member. So there are games like football, hockey and cricket which are played between teams, है ना. Each team has a captain. Each team has a captain. The players have to obey the captain. Yes, absolutely. As you are obeying your class teachers, your principal, your mother, your parents, your elders, in the same manner, the team members have to obey the captain. The captain leads the team and motivates every members. ठीक है, हर मेंबर को वो मोटिवेट करता है. मोटिवेट मीन्स एनकरेज करता है. द एबिलिटी ऑफ द कैप्टन टू कमांड इज कॉल्ड कैप्टनशिप. हर कोई कैप्टन नहीं बन पाता है, लेकिन हर किसी में एबिलिटी होती है कि वो कैप्टन बन सके. और यदि कोई कैप्टन है, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, जिससे वो अपनी टीम को कंट्रोल कर रहा है, एनकरेज कर रहा है और लीड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैप्टनशिप. ठीक है. अब बात की जाए द टीम दैट हैज़ अ गुड कैप्टन. जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? विराट कोहली. ठीक है. तो इफ़ इट हैज़ अ गुड टीम कैप्टन कैप्टन एंड सपोर्टिव प्लेयर्स इज़ अ गुड टीम. ठीक है. तो जिस टीम का कैप्टन बहुत सपोर्टिव होता है ना, और गुड होता है, वो टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है. अब हर एक टीम की बात की जाए यदि, तो इन अ टीम एवरी प्लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट. अब सपोज 11 मेंबर्स हैव टू प्ले इन द क्रिकेट और कोई 2 आउट हो गए हैं या 2 है ही नहीं, तो कैन दे विन द मैच? नो, बिकॉज एवरी प्लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट. एवरी प्लेयर मस्ट प्ले फॉर द टीम. ये हमने हमारी बुक में भी पढ़ा है. इफ़ यू आर प्लेइंग एज अ टीम, तो you have to play as a team, not as an individual. At times the players have to sacrifice their personal interest for their team. खुद का आपको भूलना पड़ता है when you are playing as a team. When players play for the team and support others selflessly, it is called team spirit. ठीक है. अब हमने बात करनी है, हमारी बुक में था कि everybody can play, है ना. तो यहाँ आप देखिए, कहने का मतलब ये है, हमने उसमें पढ़ा था पैरालंपिक वाली जो दीपा मलिक थी, उसके बारे में पढ़ा था, है ना. शी हैज़ अ पैरालाइज्ड बॉडी. जो उनका जो बिलो चेस्ट बॉडी था, दैट वाज पैरालाइज्ड. तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विमेन इन स्पोर्ट्स. ठीक है. तो as you can see here on my screen, there is a picture of a boxer and she is Mary Kom. ठीक है. तो she is a woman. Women are also providing themselves in various sports. ठीक है. They are competing and bringing home trophies and medals. Absolutely. They are making their country proud. Some of the famous sportswomen of India are Sania Mirza. She is a tennis player. Mary Kom, she is a boxing champion. And Deepika Kumari, ये आर्चरी में इन्होंने मेडल लाए. ठीक है. तो these are the famous women in sports, and absolutely you can also achieve some targets. Importance of games we have discussed कि why it is important to play games, because it keeps us fit, strengthens our body and keep our mind fresh, है ना. गेम्स ऑल्सो हेल्प टू स्ट्रेंथन आर सोशल वेलबींग एंड इमोशनल हेल्थ. अब अगर बात की जाए हाउ योर स्ट्रेंथ इज़ इम्प्रूव बाय प्लेइंग गेम और हाउ योर माइंड इज़ बीइंग फ्रेश्ड. सी you are studying from last 2 hours continuously, but if you play some other game apart of your book, if you are doing something else, you may feel refreshed, है ना. So let us look at some of the benefits of games in our life. What are these? These are here. क्या importance है games के हमारी life में? Games help us to make new friends. Games जो होते हैं हमें new friends बनाने का chance देते हैं. Playing together gives us a scope to improve our friendship. अब वही बात इन्होंने दोबारा कह दी. Instill tolerance. हम टॉलरेट करना सीखते हैं. ठीक है. टॉलरेट मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त करना.
दे टीच कॉपरेशन, बिल्कुल आप एक टीम की तरह खेलते हो जब, तो आपको कॉपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है अपने टीम मेंबर्स को, तो हम कॉपरेशन भी सीखते हैं। द टीच डिसिप्लिन, कि नो आप इसी जगह रहेंगे, यू हैव टू कैच द बॉल फ्रॉम हियर, और यू कैन रन बिहाइंड द बॉल, है ना। और व्हेन यू आर डूइंग बैट्समैनशिप, तो यू कैन डू ओनली बैट्समैनशिप, यू कांट डू बॉलिंग एट अ सिंगल टाइम, है ना। दे मेक पीपल फेयर एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। दे रिड्यूस एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, येस एब्सोल्युटली, कि ये किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, ये किस रिलीजन का है, नो दैट डजेंट मैटर व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देते हो वहाँ पे और अच्छे से खेलते हो। दे हैव टू डेवलप लीडरशिप स्किल, किसी किसी में जो लीडरशिप स्किल हैं वो खेलते खेलते इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर फैक्ट और द एडवांस यू कैन से advantage of playing sport. They teach sportsmanship that we have discussed, and these also we have discussed, ठीक है, कि we should play mobile phone, telephone, computer game for a limited period of time, and we should watch television also for a limited time, because watching television for long hours and playing computer games for long periods is harmful. How? Because there is enjoyment but only a little benefit. आप इतना सारा एंटरटेनमेंट करते हो, उसमें इतना सा बेनिफिट होता है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एंड इट इम्प्रूव्स योर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। आर मसल्स एंड आइज गेट स्ट्रेन्ड, है ना। It is always better to go out and play in the open, not in pandemic. अभी नहीं जाना है आपको घर से बाहर, अब घर में भी कुछ खेल सकते हो। Television and computer games should be enjoyed but for a limited period only. अब देखिए, here we can summarize this chapter, what we have learned in this chapter. जब हम गेम खेलते हैं तो it entertain us, है ना। Some games are played in pairs and some are played among 4 players. ठीक है, कुछ 2 लोगों में की टीम के साथ खेलते हैं हम, कुछ 4 के साथ इंडिविजुअली खेलते हैं, कुछ टीम बना के खेलते हैं। whereas some played between teams. Some people take up games as their profession, like Sachin Tendulkar, Virat Kohli, MS Dhoni, Sania Mirza. So they have made their profession the sports, है ना। These are many popular local games. There are many popular local games like खो-खो, कबड्डी, है ना, फ्लाइंग काइट्स, सारे सब क्या है, लोकल गेम्स हैं। प्लेइंग कंचास और मार्बल्स, गिल्ली डंडा, ठीक है। मार्शल आर्ट्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड पेशेंस। जब आपको मार्शल आर्ट सीखना तो यू हैव टू बी पेशेंट, और आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। women have also proved themselves in various sports, absolutely. Playing games helps us to strengthen our social well-being and emotional health. So students, here we have done everything for this chapter. Okay, this is the exercise for this chapter. See, these all the things I am explaining from another book. This is not in your book. आपकी बुक में नहीं है. You don't have to worry about it. ठीक है, I am using another book to explain you more, है ना। एंड अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लें इस चैप्टर की। नाउ चिल्ड्रन प्ले गेम्स फॉर एंटरटेनमेंट, यस। लिटिल गर्ल्स मोस्टली प्ले विथ टॉयज़ और डॉल्स, जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, एक तरह आपने देखा होगा डॉल्स के साथ खेलती हैं। टेनिस एंड फुटबॉल आर वेट लेट मी डू वन थिंग। टेनिस एंड फुटबॉल आर famous games, popular, or you can say popular games. And now who is a woman boxer we have studied recently? That is Mary Kom. Watching television for a long time is harmful. Now here, as you can see, true and false, right? Yes or no, same thing है. Playing games is a good form of entertainment. Yes, when you play you feel refreshed, है ना. So it is very
a good form of entertainment. So it is yes. Saina Nehwal play tennis? No. Sania Mirza plays tennis, na? Saina Nehwal to plays racket or you can say badminton. बिलियार्ड इज एन इंडोर गेम, बताइए बिलियार्ड क्या है, इंडोर है ना, यस, सो इट इज एन इंडोर गेम. कबड्डी इज ए लोकल गेम, यस इट्स अ लोकल गेम. रेसलिंग इज ऑल्सो नोन एज थांगथा, थांगथा, यस, असम में है ना, मणिपुर में है, हमने पढ़ा ना अभी. सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव डन विद द डिस्कशन पार्ट एज एन एक्स्ट्रा फ्रॉम अनदर बुक. ठीक है. So stay at home, be safe. Thank you.